Hello dear students. So yesterday we have started this civics chapter. I think it's a big chapter, might be we are unable to complete it, but the introduction part that I am giving you, it will help you in solving the chapter properly. Okay, we have yesterday seen one of the important videos, there was this pictures that were here. उसके बेसिस पे वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस. आई नो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस. व्हाट इज हैपनिंग इन पातालपुरम? पातालपुरम में देयर वाज वाटर इशू, देयर वाज वाटर प्रॉब्लम ड्यू टू विच मैनी पीपल हैव डाइड. व्हाई इज दिस प्रॉब्लम सीरियस? क्या है इसमें एंड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? दैट इज ऑल्सो यू हैव टू मेंशन हियर, because you know health issues, water availability is the basic requirement. So if water is not available, so what will happen? How will the people live? Got it? What action do you think can be taken in the above situation? क्या करना है इसमें? And why do you think and who do you think should take this action? किसको ये काम करना चाहिए? क्या हाउ दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी सॉल्व? तो अब इसका आंसर हमको यहाँ पे मिलेगा. दिस इज टू बी डन बाय द MLA. Got it? अभी above section में you have read about some events in Patalpuram. आपको पता होगा some official names like some names were taken there, collector, medical officer, etc. लेकिन हैव यू हर्ड ऑफ एन MLA? MLA के बारे में सुना है आपने? एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली. तो MLA कौन है आपके एरिया का? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू? ऑफ कोर्स आप इसको पता लगा सकते हो चिल्ड्रन. MLA फुल people elect them, they are elected by the people, they then become members of the legislative assembly and they also form the government. This way what happens कि MLAs represent the people. वाराणसी में हर एक आदमी जाके पार्लियामेंट में अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर सकता ना. Suppose there is some problem, water problem in Varanasi, or some health issues are there, hospitals कम है, बच्चों को एजुकेशन ठीक नहीं मिल रही है, तो where will the people go? कहाँ पे जाके लोग अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे? तो एक कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ना, जो लोकल प्रॉब्लम जाके बड़े लोगों को बताए. Everybody cannot go to the president, prime minister and chief minister na. So these MLAs are the representatives, they are the people who are responsible to carry on the work of the legislative members, work of the common people, or problems of the common people is taken in the Vidhan Sabha. अभी नीचे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ, इससे हमको अच्छे से समझ में आएगा. लाइक एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली. वी आर इन यूपी, उत्तर प्रदेश में है हम, एंड इन द उत्तर प्रदेश ऑल्सो इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी. वी आर इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी. हम किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है? वी आर इन द वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी. गॉट इट? अभी नीचे मैप है, वी विल बी सीइंग दैट. The state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. नीचे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है चिल्ड्रन, that is about Himachal Pradesh, that is not about UP, but the kind of structure that is there in Himachal Pradesh, उसी तरह का कुछ सिस्टम हमारे यहाँ भी है. From each constituency, people elect one representative. एक आदमी को elect करते हैं, who becomes the member of legislative assembly, MLA बनते हैं. And you will notice that people for elections in the name of different parties, क्या होता है? MLAs belong to different political parties. अभी if I will tell, suppose I am just giving you the example of Varanasi.
Varanasi में MLA is there, and MLA she's the lady who is there is the representative from Varanasi. आप इसको पता करोगे. I am not discussing it with you. आप सोच रहे हो कि मैम नाम नहीं बता रहे हैं, because I want you all to find it out. आप इसको पता करोगे. You have got so much time. Please try to find out who is the MLA from Varanasi. And the MLAs, what happened when they become ministers or chief ministers? तो क्या होता है, कैसे बनते हैं? सपोज अ पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी इज देयर, MLAs हैव वन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. जैसे हिमाचल प्रदेश, अभी हमने क्या देखा, हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. 68 का आधा होगा 34. तो सपोज बीजेपी हैज वन आउट ऑफ 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी हैज वन 35 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अगर 35 विन किया है बीजेपी ने, तो आर चीफ मिनिस्टर जो होगा वो उसी पार्टी से होगा. आई वॉज जस्ट साइटिंग एन एग्जाम्पल. सो more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority. And political party जिसकी majority होती है, like BJP has won 35 seats, अगर उन्होंने जीत लिया है, तो they are the ones who will be forming the government. They are called as the ruling party. And all the other members are called as opposition. तो लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ पे इलेक्शंस होंगे. 68 आर देयर. जस्ट सी चिल्ड्रन, दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. आई होप यू ऑल नो द मैप वेरी वेल. ये थोड़ा सा पुराना मैप है, आई थिंक सो, बिकॉज नाउ दिस हैज ऑल्सो बिकम अ स्टेट एंड Ladakh has also become union territory ना. ये हिमाचल प्रदेश है. Just see. So total number of constituencies are 68 constituencies. ये देखो सबसे लास्ट. And छोटे छोटे मतलब there would be one MLA who would be elected from everywhere. हिमाचल प्रदेश को यहाँ पे पर्पल में कलर किया गया है. जस्ट सी, दिस इज हिमाचल प्रदेश. ठीक है. एंड टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन्स हर एक एरिया में इसको डिवाइड कर दिया गया है. इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू सो मेनी स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. मतलब यहाँ पे एमएलए का जब इलेक्शन होगा, so the person who is elected member is responsible to look after all this area. ये इतने एरिया पे जो है, इतने एरिया का there would be one MLA. then यहाँ पे एक होगा, यहाँ एक होगा. so total कितने MLAs हो जाएंगे यहाँ पे? total there would be 68 MLAs. got it children? पर्पल कलर में है. अभी देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश. यू कैन सी इट इज़ हियर. ये HP हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे. ठीक है. उसी के साथ ऑल दीज अदर स्टेट्स आर ऑल्सो देयर. यहाँ पे दे हैव शोन. जस्ट सी हिमाचल प्रदेश से लगे हुए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इस वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी सीट्स हैं? हाउ मेनी सीट्स आर हियर? यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम 20 सीट्स आर देयर. इसके नीचे में जो स्टेट है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर. 49 सॉरी, ये देखो 49. मैक्सिमम नंबर इज 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर हियर. फिर ये ग्रीन कलर में क्या है? ग्रीन कलर इज दिल्ली. जस्ट चेक. हाँ, दिस वाज
पंजाब एंड दिस वाज हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा में साथ में इलेक्शंस अगर हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसको डिवाइड किया गया है। सो देयर आर टोटल 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ ये दिल्ली है, तो दिल्ली इज़ इन ग्रीन कलर। आप देखो यहाँ पे ग्रीन कलर है, तो इसमें भी देयर आर सो मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इट इज़ डिवाइडेड। दिल्ली, गॉट इट? नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी चिल्ड्रन, हिमाचल प्रदेश के ऊपर में कौन सा है? जस्ट तो you can understand the different constituencies in which India has divided. तो जो the majority, the party which has won more than half the seats, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चाहे 70 अब जैसे यूपी है, यूपी में तो आई थिंक देयर आर बहुत सारे 102 की 103 कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप देख लेना इसको एक बारी, जस्ट चेक इट ऑन द नेट, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डू यूपी हैव, यूपी में कितनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। गॉट इट चिल्ड्रन? सो जो रूलिंग पार्टी इज देयर वो तो गवर्नमेंट बना लेगी, और जो बाकी के लोग जो हार गए हैं और जो जीत के भी गवर्नमेंट नहीं बना पाए हैं, they will be sitting in the opposition. Got it? अभी इलेक्शंस का रिजल्ट देखो। 2017 में देयर वाज असेंबली इलेक्शंस, जस्ट नाउ दैट वी वर टॉकिंग, अभी जो हमने बात की, इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन 2017, सबसे पहले नंबर ऑफ MLAs हु वर इलेक्टेड, देयर आर 44 MLAs। किस पार्टी के हैं? बीजेपी के। एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर फ्रॉम INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस? 21 मेंबर्स आर देयर। CPI कम्युनिस्ट पार्टी को मिले हैं 1 सीट, एंड देयर आर सर्टेन मेंबर्स जो कि किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, दे हैव ऑल्सो 1-2 सीट्स। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे हु विल बी मेकिंग द गवर्नमेंट? यस, कितने चाहिए थे? दे नीडेड ओनली 35 सीट्स, लेकिन यहाँ हाउ मेनी सीट्स दे हैव वन? दे हैव वन 44। सो इट्स अ वेरी क्लियर वर्डिक्ट, बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है दैट हिमाचल प्रदेश में इट वुड बी द गवर्नमेंट ऑफ BJP। गॉट इट? इस तरह से इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंस होते हैं। दिस एक्टिविटी यू कैन डेफिनेटली डू इट, नेट का हेल्प लेके। प्लीज मेक अ टेबल फॉर उत्तर प्रदेश। टाइप करना ना लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, तो आराम से यू विल बी गेटिंग ऑल द डेटा एंड मेक अ टेबल लाइक दिस। ठीक है, 2017 में वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वन द 2017 असेंबली इलेक्शंस, दे बिकेम द MLAs। उसके बाद से MLAs इन द लेजिस्लेटिव असेंबली 68, पॉलिटिकल पार्टी को मोर देन 34 MLAs चाहिए था, जस्ट नाउ दैट वी डिस्कस्ड, एंड BJP हैड गॉट 44 MLAs एंड इट बिकेम अ रूलिंग पार्टी। सो बाकी के MLAs जो जीत गए लेकिन फिर भी गवर्नमेंट नहीं बना पाए, दोज हु डिड नॉट कुड हैव ऑलरेडी वन ना, खाली BJP हैज गॉट 44 सीट्स, तो 68 में बाकी की सीट्स भी तो बची है ना। सो ऑल दीज सीट्स वुड बी ऑक्यूपाइड। ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स की भी आप पावर कम मत समझो। दे सिट इन द ऑपोजिशन पार्टी बट दे कीप अ चेक ऑन द वर्क ऑफ द रूलिंग पार्टी, कि जिस पार्टी ने इलेक्शंस विन किया है वो क्या काम कर रहे हैं, व्हाट आर द वर्क दैट दे आर इन्वॉल्व्ड इन। लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर BJP was इंडियन नेशनल कांग्रेस। So opposition में there were other parties, those who had been elected as independent candidates. Independent candidates भी थे जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे, उन्होंने भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। इलेक्शंस के बाद क्या होता है, MLAs belonging to the ruling party
उसी लीडर को इलेक्ट करेंगे who will become the chief minister. 44 में से the most popular person will become the chief minister. बीजेपी MLAs ने क्या किया? राम ठाकुर as their leader and he became the chief minister. बेटा 2017 का है, ठीक है. उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही विल बी सेलेक्टिंग हु आर द अदर पीपल एज मिनिस्टर्स. गवर्नर हु इज देयर इन द स्टेट अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स. बाकी के मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने के लिए देयर इज द चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है ना, जहाँ पे कि उनसे प्रण करवाया जाता है कि मैं जो भी करूँगा अपने लोगों के लिए ही करूँगा, उनकी भलाई के लिए. ओथ टेकिंग दे हैव टू टेक, कसमें खानी पड़ती है. व्हेन यू आर देयर इन द रूलिंग पार्टी, लोगों ने आपको इतना विश्वास करके दे हैव सेंट यू इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यू आर रिप्रेजेंटिंग द कॉमन पीपल, तो यू हैव टू सी दैट हाउ यू लुक आफ्टर देयर बेनिफिट. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीफ मिनिस्टर की? अभी देखो यूपी में व्हाट इज द रोल बी. योगी आदित्यनाथ इज द चीफ मिनिस्टर, बाकी के मिनिस्टर्स भी हैं. तो दे आर रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज. स्टेट में सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग. आप देख लो अभी मेडिकल फैसिलिटीज, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे स्ट्रेस किया जा रहा है दैट इज़ मेडिकल फैसिलिटीज़. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी तो अ टाइम विल कम जबकि पीपल वुड बी इन टू ट्रबल. आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? दे हैव सेपरेट ऑफिसर्स. Legislative Assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. Any problem that is there in the state, discussions happen on that. तो some MLAs are there, उनके dual responsibility होती है, double काम करना पड़ता है, एक as an MLA and other as a minister. Okay. सो वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर. आगे भी हम लोगों को जो है काम करना पड़े. वी विल, इसमें अभी हम और भी चीज़ें जानेंगे. सो लेजिस्लेटिव असेंबली का वर्किंग, हाउ डज इट हैपन, एंड दिस इज बीइंग, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस. As per the example given here, Afreen, Sujata and many students, what did they do? They went to the state capital. हमारा state capital क्या है children? Yes, Lucknow. So they went to the legislative assembly which was housed in an impressive building. Housed मतलब वो जो legislative assembly, अभी जो parliament है, parliament is so beautiful, isn't it? We are very excited. What had happened? देन दे वर टेकन अपस्टेयर्स. वहाँ पे गैलरी बनी हुई थी, मतलब एक जैसे कि ऊपर में एक वन गैलरी इज़ देयर, नीचे में आप वहाँ पे बैठ के, सीट्स लगी होती हैं, आप यू सिट देयर, बहुत बड़े बड़े, एंड देन यू विल सी द एक्टिविटीज़ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. वहाँ पे बैठ के लीडर्स क्या काम करते हैं, क्या डिस्कशंस करते हैं, दे वेर मेड टू सी दैट. एंड they could see large hall below. There were rows and rows of desks. And वहाँ पे डिस्कशन होने वाला था, डिबेट होने वाला था. On what? On a current problem. इस समय क्या था? MLAs can express their opinions and ask any question related to the issue or give suggestions about what should be done by the government. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसके ऊपर दे कैन कीप ऑन गिविंग सजेशंस, दे कैन कीप ऑन गिविंग देयर आइडियाज. गवर्नमेंट इज डूइंग देयर वर्क, इट्स वर्क, बट देन एट टाइम्स इट हैपन्स दैट, हो जाता है कभी कभी नहीं ठीक से कुछ हो पाया, काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं कुछ गलती हो गई. तो एनीबडी हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस, and the minister replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. Ruling party,
यू आर द रूलिंग पार्टी बट पीपल हैव इलेक्टेड यू। तो लेकिन आपको ये समझना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड हियर, कि ऑपोजिशन पार्टी को भी तो द पीपल हैव इलेक्टेड। द रूलिंग पार्टी, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, रूलिंग पार्टी हैज गॉट 44 सीट्स। बाकी के लोग जो बचे, ठीक है, 44 में से हाउ मेनी आर लेफ्ट? 24 आई थिंक आर लेफ्ट। These 24 people are also elected by the common people. तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, they ask the questions to the government कि why arrangements are not made proper, क्या प्रॉब्लम है। Chief ministers and other ministers have to take decisions and run the government. They are running the government. हम उनके बारे में सुनते हैं, see them in the news channels or in the papers. लेकिन whatever decisions are being taken, they have to be approved by the members of the legislative assembly. Legislative assembly के members को वो approve करना पड़ता है, and in a democracy what happens? These members can ask questions. Debate भी हो सकता है important issues में, and they decide where money should be spent, etc. And they have the main authority. ठीक है, डिबेट इज हैपनिंग दैट वॉट एवर मनी इज देयर इन द स्टेट, वेयर दैट मनी शुड बी यूज्ड, what welfare activities should be carried on, that is the thing which needs to be taken care of. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बच्चे आफरीन, सुजाता और बहुत सारे बच्चे हैं who has gone to visit the legislative assembly. वहाँ पे now discussions are happening. Now what are the discussions that are happening? Some current problems पे there was discussion. तो one MLA stands. ठीक है, all the MLAs are sitting there. How many MLAs are sitting there? 68 MLAs are there. या फिर जो भी स्टेट की हम बात कर रहे हैं उस स्टेट के MLAs वहां पे बैठे हुए हैं. आफ्टर इलेक्शंस दे आर सिटिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. ही सेज इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंड गांव मतलब गांव होगा, लास्ट 3 वीक से क्या हुआ है, 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया. अभी जस्ट नाउ वी रेड अबाउट द इशू ऑफ वाटर प्रॉब्लम के वजह से दीज थिंग्स आर हैपनिंग. I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of simple problem like diarrhea. वो कह रहे हैं, now look how allegations are there. The ruling party जो उनको बहुत गालियां सुननी पड़ती हैं. I am explaining you in a very simple manner, my dear children. They have to see that the working and the functions are happening in a very smooth manner. Otherwise, anybody can question them and anybody can put allegations on them. उनके ऊपर किसी भी तरह का इल्ज़ाम कोई भी लगा सकता है. तो उन इल्ज़ामों से बचने के लिए उनको अपना काम सही ढंग से करके दिखाना है. Got it? So the MLA is saying कि problem of diarrhea is there and he is saying that they need to be champion of technology. कह रहे हैं कि I would call the attention of the minister in charge of health कि आपने health issue इतना problem आ रही है, people are dying because of diarrhea. What measures have been taken to control the situation? That immediate measures needs to be taken to control the situation of diarrhea. Okay. Now MLA 2 is saying, MLA को जवाब देना है. My question is, why are government hospitals in such a bad situation where people are dying because of diarrhea? That means that the government hospitals are facing lot of problems and the government is not appointing proper doctors and other medical officers in the district. Because if proper doctors are not available, proper doctors are not there, who will be taking care of the health issues of the people who are staying in that city? किस जगह की बात कर रहे हैं हम? We are talking about अखंड गांव. Just see children, it is mentioned here. अखंड गांव. Got it?
See, government hospitals is in a very bad condition, and government is not appointing proper doctors and other medical staff in the district. So how government plans to deal with this situation? Because अभी हमने क्या पढ़ा पीछे जो कार्टून दिया हुआ था, that government has planned, what will the government do to deal, डायरिया से लोग मर रहे हैं, ठीक है, which is affecting large number of people and is also spreading. This is an epidemic. Diarrhea has also become an epidemic. Yes. Now MLA 3 is saying, my constituency of Tolpatti. Tolpatti, अभी एक था अखंड गांव था ना, दूसरा another one is Tolpatti. वहाँ पे भी water shortage is there. Women travel up to 3 or 4 kilometers to collect water. Imagine the condition. दैट जहाँ पे पानी लेने के लिए औरतों को 3 से 4 किलोमीटर तक ट्रेवल करना पड़ता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ बैड द सिचुएशन इज. ओके, सो दे आर सेइंग व्हेन विमेन आर ट्रैवलिंग टू सच फार ऑफ प्लेसेस, हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस और टू सप्लाई वाटर. Water availability is very important. Without water, people will die. Of course, you know it very well. Wells and ponds have been cleaned and disinfected. क्योंकि अगर पानी जमा हो जाएगा, पानी जम जाएगा, तो उसी में मच्छर हो जाएंगे, उसी में there are lot of infections that happen on the still water or the stagnant water. जो ठहरा हुआ पानी होता है वो सबसे खतरनाक होता है, ठीक है. So they are saying, I think my colleagues are exaggerating. MLA 4 now understands stance. ये देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, दे आर ऑलवेज फ्रॉम द ऑपोजिशन. ऑपोजिशन का यही काम होता है कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट बना लिए हैं लेकिन गवर्नमेंट इज अनेबल टू फंक्शन, इतने सारे लोग मर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग. तो नाउ MLA 4 is standing, he is from the ruling party. They have to answer the question now. So what is he doing? Now he is answering the question. He is saying, I think my colleagues are exaggerating the problem. बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं. And government have taken steps to control the situation. क्या क्या अब government ने क्या क्या किया है? This MLA is explaining. Water tankers have been put into service. ठीक है, टैंकर्स लगा दिए हैं, ORS के पैकेट बंटवा दिए हैं, and the government is doing everything possible to help the people. Everything government is doing to help the people. Got it? So MLA 5 is saying we have poor facilities in our hospitals. MLA 5 now stands, he is saying there are hospitals, ऐसी भी हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टर्स आर नॉट देयर. तो ऐसे हॉस्पिटल खोलने का क्या मतलब है? ओनली हॉस्पिटल्स खाली दिखाने के लिए नहीं खोलना है ना. देयर आर नो डॉक्टर्स, देन what should be done? No medical staff is also there last few years. So the doctor has gone on a long leave. This is a shame. Doctors cannot take such a long leave. डॉक्टर्स हैव टू बी कंटिन्यूसली ऑन देयर. अभी सोचो इतनी बड़ी कोरोना की प्रॉब्लम फैली हुई है, उसमें इफ़ द डॉक्टर्स गो ऑन लीव, कितने शर्म की बात होगी. इस समय डॉक्टर्स की सर्विस की ज़रूरत है, इस समय डॉक्टर्स के काम की ज़रूरत है. सो दे आर सेइंग द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स्ट. खराब से बद से बदतर होता जा रहा है. हम ORS पैकेट्स reach all families in the affected areas. We have to see that ORS packets are reaching everywhere. वो जब डायरिया हो जाता है ना, आपके पेट जब खराब होता है, you are continuously vomiting and you are continuously going to the washroom, then certain arrangements it is made. आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए ORS के पैकेट्स बांटे जाते हैं. Opposition members जो है, they are unnecessarily blaming the government. And all the previous government did not pay any attention to sanitation. ठीक है, साफ सफाई के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है. They are saying. So they are saying कि we will be cleaning the surroundings and clear the garbage. कूड़ा भी साफ करना है. Lying around for years.
MLA 6 इज़ फ्रॉम द रूलिंग पार्टी बिकॉज ही इज सेइंग कि ऑपोजिशन मेंबर्स जो हैं फालतू में हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। प्रीवियस गवर्नमेंट, मतलब हमने तो अभी गवर्नमेंट बनाई है, पहले तो यही लोग रूल कर रहे थे। ऑल दिस प्रीवियस गवर्नमेंट, इन्होंने क्या किया है, हमने सारा कूड़ा हटा दिया है शहर से जो बहुत सालों से था। वी आर डूइंग द क्लीनिंग, वी आर लुकिंग आफ्टर द पीपल, एंड जो पहले के गवर्नमेंट ने काम नहीं भी किया है वो भी काम हम ही कर रहे हैं। गॉट इट? नाउ ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये देखो MLA 1 2 3 4, यहाँ पे पिक्चर इज ऑल्सो गिवन। अब इसमें हु इज़ द रूलिंग पार्टी एंड हु इज़ द ऑपोजिशन पार्टी मैंने आपको एक करके दिखा दिया है। यू हैव टू जस्ट डू दिस एक्सरसाइज एंड डू द कलरिंग। प्लीज डू दिस एक्टिविटी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। रूलिंग पार्टी के लोगों को एक कलर में आपको कलर करना है, ऑपोजिशन पार्टी के रूलर्स को अलग कलर में करना है। ठीक है, चलो डू दिस एक्टिविटी एंड थैंक यू चिल्ड्रन एंड ऑल द बेस्ट टू यू।